world where the spotlight often obscures the truth, the Sushant Singh Rajput case continues to be a symbol of justice sought by millions. A demise that captured the nation's attention. A case that was clouded with mysteries, that whether it was a suicide or a murder case. Hello everyone, this is Snehal Tiwari. And today, in this video, we will delve into one of the most sensational and controversial cases that have gripped the nation's attention. The Sushant Singh Rajput case. In the late actor's untimely demise, there was a lot of mystery surrounded. That whether it was a suicide or a murder. And how the police officials and the bureaucrats were unable to solve this mystery and have tried to hide the suspect. In this video, we will try to unravel the complexities of this case and the developments that have occurred since the tragic incident in June 2020. The untimely demise of the talented Bollywood actor Sushant Singh Rajput not only shocked the nation but also ignited a series of events that raised questions about the circumstances surrounding his death. From the streets of Mumbai to social media platforms, the public demanded answers, and the case took unexpected twists and turns. The investigation into whether it was a suicide or a murder led to intense scrutiny of police officials and the bureaucrats who were tasked with solving the mystery. As the legal proceeding unfolded, the case became even more complex with various narratives and speculations. Many people wondered if justice would ever be served to Sushant or not. Throughout this tumultuous journey, the family, friends, and supporters of Sushant Singh Rajput sought the truth, while the entire nation held its breath, waiting for a closure. In the months and years that followed that tragic incident in June 2020, significant developments have occurred, bringing us closure to understand the truth in a better way. Now with you, this is Swati Sharma. Heading towards the another angle of the case, Riya Chakravarti. Sushant Singh Rajput's girlfriend Riya was accused in the FIR filed by Sushant Singh Rajput's father, KK Singh, alleging her involvement in his suicide and financial misconduct. She faced questioning from the CBI and the ED. In September 2020, Chakravarti was arrested by the NCB on drug-related charges, subsequently released on bail after a month in jail. The CBI continues to investigate Sushant Singh Rajput's death, leaving Riya Chakravarti's potential charges uncertain. Her role in the case has stirred controversy in India. The CBI, ED and NCB were all investigating the suicide of Bollywood actor Sushant Singh Rajput. The CBI was investigating the circumstances surrounding Rajput's death, and the agency had interviewed numerous witnesses and collected a large amount of evidence, including Rajput's phone and computer records. The ED was investigating allegations of money laundering and financial irregularities in connection with Rajput's death. The agency had frozen the assets of several individuals and companies, including Rajput's girlfriend Riya Chakravarti and her family. The NCB was investigating allegations of drug use in the Bollywood industry, including by Rajput and Chakravarti. The agency had arrested several individuals in connection with the probe, including Chakravarti's brother, Shouvik Chakravarti. The investigations by the CBI, ED and NCB had been highly controversial. Some critics had accused the agencies of using the case to target Riya Chakravarti and her family, who were close to the ruling Bharatiya Janata Party. Others had defended the agencies, saying that they were simply doing their job and following the evidence. सो जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद बहुत लोगों का कहना था कि एक सुसाइड केस है और कुछ लोगों का कहना था कि मर्डर केस है, और इस पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने की थी। तो आपका क्या कहना है मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे? देखिए, प्रारंभिक ये घटना जब हुआ था तो उस समय जहाँ घटनाएं घटित होती है तो उस राज्य की पुलिस ही जांच करती है, अनुसंधान करती है। और इस घटना के बाद देशव्यापी ये चर्चा में आया था, मीडिया बहुत ही मामले को उछाल किया था। उसके बाद ये मामला वहाँ से सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ भी मामला दर्ज हुआ था, यहाँ से भेजा गया था, यहाँ की पुलिस गई थी
तो पुलिस अनुसंधान करती है। अनुसंधान में जो साक्ष्य होते हैं उस साक्ष्य के आधार पर ही वो अपनी केस डायरी के आधार पर कि घटना सुसाइड है कि हत्या है क्या है, उस पर वो पुलिस अनुसंधान में जो मिलता है उसके आधार पर ही जांच अनुसंधान करके और न्यायालय में उस मामले को सुपुर्द करती है। अब ये मामला क्या है नहीं है कि राजनीति इसमें है कि नहीं है, ये मामला ये तो मतलब कि जो अंतिम जो आरोप पर दाखिल होता है उसमें निष्कर्ष में निकल के और निचोड़ होकर न्यायालय में जैसा है। सर आपको क्या लगता है मुंबई पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन आया था कि ये सुसाइड केस है, मर्डर केस नहीं है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और देखिए इस पर तो बहुत टिप्पणी नहीं, जो जांच करने वाले होते हैं वही पर इस पर विशेष टिप्पणी देख सकते क्या है। लेकिन आम चर्चाएं ऐसी थी कि बिहार का एक गरीब परिवार का लड़का उभरता हुआ मुंबई के इंडस्ट्री में जाता है, एक पहचान बनाता है और मुंबई की इंडस्ट्री में पहले से ही बहुत ऐसे सारे घराने हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका संबंध इंडिया के बाहर तक लोग नहीं चाहते हैं लोग कि बिहार का कोई व्यक्ति, बिहार का कोई इतना आर्टिस्ट लड़का और ऊंचाई की बुलंदी पर जाए, उसको लेके कई तरह की चर्चाएं होती है। तो कभी लोग नहीं चाहेगा कि ये आगे बढ़े, तो उसके पीछे भी कोई घटनाएं अगर घटित होती है तो निश्चित पर संदेह के घेरा में आता है और संदेह के घेरा में अगर आता है देश के लोग को, तो उस पर स्टेट पुलिस की या बाद में सीबीआई का मामला है, उसके बाद ही पटाक्षेप हो पाएगा कि इसमें क्या मामला है। सर ये स्टार्टिंग से कहा जा रहा था कि इन्वेस्टिगेशन में मुंबई पुलिस काफ़ी लापरवाही बरत रही है और ये केस बाद में सीबीआई और ईडी को दे दिया गया था, तो आप क्या कहना चाहिए? हाँ, प्रारंभिक में जो मुंबई पुलिस की जांच था तो हर बिंदुओं पर जो उसका जांच था उस बिंदु पर अगर डाला जाए कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बातें आई थी, शरीर पर जो दाग थे वगैरह थे, ये सब जो थे उनके गर्दन पर निशान वगैरह थे, उस मामले में संदेह बनता था और फांसी लगाने की बात थी, वहाँ ऊपर सब बहुत सारी चीज़ें थी। तो लगता है कि मेडिकल क्षेत्र में इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो पोस्टमार्टम में होना चाहिए था वो बहुत स्पष्ट नहीं, उस संदेह के घेरे में ऐसा मीडिया दिखाता था, ऐसे चर्चाएं रहती थी, ऐसा परिवार के लोग भी, सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार के लोग आरोप लगाए थे। सर अभी हाल में कूपर हॉस्पिटल की तरफ से भी स्टाफ की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि उनके बॉडी के मार्क्स थे, वो 2 साल बाद आया, उसमें क्या? अब देखिए इतना लंबे समय के बाद अगर निशान आते हैं तो निश्चित तौर पर आम जनों को संदेह होता है। वो पुलिस का काम है कि अनुसंधान में जो भी साक्ष्य दिखाई देते हैं, किसी मृतक के शरीर पर घाव निशान दिखाई देते हैं, उसको स्पष्ट मृत्यु समीक्षा रूप में लिखना चाहिए और डॉक्टर कर्तव्य है कि उस निशान के आधार पर जांच करके जांच रिपोर्ट देना चाहिए। अगर विलम्ब होता है तो विलम्ब में संदेह पैदा होता है। सर इस केस में ईडी और सीबीआई का क्या रोल था? देखिए ईडी सीबीआई तो वो तो न्यायालय के द्वारा या राज्य सरकार अनुशंसा करती है, तो ईडी या सीबीआई उसमें अपनी बातों को, जांच को अनुसंधान में लाता है और तथ्य साक्ष्य मिलते हैं, लगता है उससे जुड़ाव है तो कार्रवाई करती है। सर जब ये केस सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड डेथ मुंबई में हुआ था तो क्या बिहार पुलिस के पास लीगल राइट था इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का? देखिए सीआरपीसी में है और इस मामले को उठाने में मेरा भी बहुत अहम रोल था, क्योंकि हमारे पुलिस गई थी, वहाँ पर अरेस्ट हुआ था, यहाँ के मामले थे, तो उस मामले को मैं उठाया था। और सीआरपीसी में है कि अगर कोई व्यक्ति का परिवार है जुड़ा हुआ है तो उस मुद्दे को वो वहाँ जाता है, न्यायालय में जाता है, तो उसको FIR लॉन्च करके वहाँ वो जहाँ पे घटनाएं घटी तो वहाँ भेज सकता है। तो ऐसा कुछ है, सीआरपीसी में अधिकार है हमारे। सर बिहार पुलिस को इसमें क्या रोल था, वो किस एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी? जब यहाँ बिहार पुलिस का मामला यहाँ पर दर्ज होता है तो उस मामले को जाके जांच में जाती है और जाने के बाद लेकिन मुंबई पुलिस को जिस हिसाब से सहयोग सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि खाकी देश का एक है, एक रंग में खाकी रहता है और कर्तव्य बनता है कि देश के हर कोने की पुलिस किसी राज्य में जाती है तो जाके सपोर्ट करे, संघीय ढांचा है और सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर अपेक्षा के अनुकूल सपोर्ट नहीं मिला था, जो मामला बड़ा लिटिगेट हुआ था, बड़ा विवादित मामला हुआ था। तो मुंबई पुलिस की तरफ से इस केस में इन्वेस्टिगेशन के टाइम बहुत इंटरफेरेंस किए गए थे, वैसा मतलब मीडिया में चल रहा था, ऐसा परिवार के लोग आरोप लगा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं। पुलिस का कर्तव्य है, खाकी कर्तव्य है कि कोई भी मामला हो, कि किसी व्यक्ति से जुड़ा हो, वो न्याय के लिए और अपराधी कोई है उसके विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए कार्य करना चाहिए, निष्पक्ष कार्य करना चाहिए। और अपराधी अगर है तो साक्ष्य को जाता है तो जाके कोर्ट में उसको साक्ष्य को प्रस्तुत करना चाहिए और सजा दिलवाना चाहिए। Multiple agencies, including the CBI, ED, and NCB, were conducting investigation related to the tragic suicide of the Bollywood actor Sushant Singh Rajput. The CBI was focused on the circumstances of his death. The ED was looking into the financial irregularities and money laundering allegations, and the NCB was investigating claims of the drug use. These investigations had sparked controversy, but they are still ongoing.
Almost after 3 years and 4 months, still the Sushant Singh Rajput suicide case is unfolding. It is unclear what the outcome of the investigation will be. With camera person Hamid Khan, thank you for watching.